Hello students, welcome to the online classes of Adi Career Point. And students, in this video I am continuing the part 2 of judiciary. And in this particular video I am again going to discuss 5 important MCQs which were asked in the different competitive examinations, that is in state service examination, state civil service or UPSC examination. तो आइए आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं 5 अलग क्वेश्चंस के साथ एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ द पार्ट 1 of the video which is relating with the topic judiciary in the description box, and don't forget to like, share and subscribe this channel. So start with the first question. The first question is, what is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने के क्या क्या प्रोविजंस है, किस तरह से हम उनके इंडिपेंडेंस को, उनके ऑटोनॉमी को सेव कर सकते हैं. So there are 4 options. While appointing the judge of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India. सबसे पहला पॉइंट, जब भी जज को अपॉइंट किया जाएगा, किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के, then the President of India has to consult the Chief Justice of India. Option 2, the judge of the Supreme Court can be removed by the Chief Justice of India only. Option 3, the salaries of the judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote. And option 4, all appointment of officers and the staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. So here these are the 4 statements, and on the basis of these 4 statements you have to choose the correct option, and there are 4 options. Option A, that is 1 and 3 only, option B 3 and 4, and option C only 4, and option D all of the above. And student, if you study these statements minoritely, you will be able to identify that these statements are actually related with the removal and appointment of the judges and with their salaries. So what is the correct answer? Identify this. So let's check the correct answer. The correct answer is option A, that is 1 and 3 only. So 1 and 3 only is the correct option. Okay, so what is given in point number 1? Point number 1 में क्या दिया हुआ है? So while appointing the judge of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India. It is true. And option 3, which is also the correct statements, and other statements are not correct, that is the salaries of the judges are charged on the Consolidated Fund of India to which the legislature does not have to vote. जिसके लिए legislature को, यानी जो पार्लियामेंट में उसे वोट करने की जरूरत नहीं है कि जजेस की सैलरी कितनी होगी, वो पार्लियामेंट के ऊपर, उनके वोट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है. तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ. तो सबसे पहले अबाउट द रिमूवल. तो रिमूवल कैसे होता है? यहाँ 2 स्टेटमेंट स्टूडेंट करेक्ट रॉन्ग है, दैट इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली. So this is also the wrong statement. And option 4, जहां पर यह कहा गया है कि all appointment of officers and the staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. तो जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं ऑफिसर्स और स्टाफ के, उनका जो होता है अपॉइंटमेंट, वो किसके साथ में होता है? गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करने के बाद. तो आइए जानते हैं यहाँ पर ये क्या प्रोसीड्यूर है. तो अगर बात करते हैं रिमूवल की, तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्ड अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस. तो जजेस को लेकर, उनके रिमूवल को लेकर बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज अगर वो अपने पोस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिहेवियर को सही नहीं रख रहे, मिसबिहेवियर हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, या फिर वो इनकैपेबल है, तब जाकर के ही उन्हें रिमूव किया जाता है. एंड दिस रिमूवल इज नॉट डन डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ. प्रेसिडेंट भी इनसे डायरेक्टली नहीं करते, बल्कि क्या होता है, अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड. ठीक है, मोशन कंटेनिंग व्हाट? चार्जेस ऑफ द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. दोनों को ही हम जो है तभी रिमूव कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, अगर वो स्पेशली अप्रूव्ड होता है विद स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा.
ठीक है। और कहां पर? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब क्या है? दैट इज द लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही इसे पास होना पड़ेगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास नहीं होती है तो हम जज को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अबाउट द अपॉइंटमेंट, तो अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। वो किससे कंसल्ट करेंगे? वो कंसल्ट करेंगे ओनली टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। हमारे यहाँ पर देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड 3 ऑर्गन्स में आपके 3 है, आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, और तीनों ही अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इन तीनों में कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने दायरे को क्रॉस करके वो जुडिशियल सिस्टम में चले जाएं, क्योंकि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ही जरूरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन democratic government in country and to provide justice to all the people in the society. Okay, now next question. The judges of the Supreme Court after retirement are permitted to carry on practice before. तो जजेस जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद क्या वो जो है अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं? कहां कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहां कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में केवल, या हाई कोर्ट में, या बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो लेट्स चेक. द करेक्ट आंसर इज, इट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. ओके, तो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको परमिशन नहीं मिलता है कि वो अपने प्रैक्टिस को कैरी ऑन करे. रिटायरमेंट मतलब वो आराम से रिटायर करेंगे. ओके, so let's get the explanation discussing about this. So under article 124 clause 7, तो article 124 clause 7 Indian constitution की mention करता है that no person who has held office as a judge of the supreme court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India. वो किसी भी कोर्ट में, किसी भी अथॉरिटी में, वो उनके पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने आप प्रैक्टिस को कैरी ऑन कर सके. लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है. So what is that exception? I am discussing about that, and that exception is given in article 128 of the Indian Constitution. And what is this exception is that if the Chief Justice of India may also invite, if the Chief Justice of India invite the retired judge of the Supreme Court or a retired judge of High Court having the qualification to be a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court for such period he deemed necessary. तो अगर Chief Justice of India को अगर ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर केस में किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उन्हें बुलाना चाहिए, तब वो बुलाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा. फॉर दिस दे हैव टू टेक द प्रायर कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन ओनली दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एबल टू अलाउ पर्टिकुलर जज और अलाउ करना या फिर इनवाइट करना पर्टिकुलर जज फॉर द पर्टिकुलर केस. ओके, ये एक्सेप्शन है, यानी हम कैरी ऑन नहीं कर सकते हमारे प्रैक्टिस को. लेकिन अगर चीफ जस्टिस को ऐसा लगता है ये जज इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत इनका जजमेंट इसमें अच्छा हो सकता है, उनको बहुत नॉलेज है, तो वो उन्हें किसी केस को डील करने के लिए बुला सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट. लेकिन उसके लिए उन्हें प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, now the question number 3 about the acting Chief Justice of India. Then who is appointed? Acting Chief Justice of India is appointed by whom? तो कौन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड लॉ मिनिस्टर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या लॉ मिनिस्टर, किसके पास ये पावर है कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करे? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट. ओनली प्रेसिडेंट के पास में ये ऑथोरिटी है, प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करे. So let's discuss.
So according to article 126 of Indian Constitution, तो article 126 जो Indian Constitution का है ये it deals with the acting Chief Justice of India, and it said that when the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice of India is unable to perform the duties of his office due to certain reason, then the President shall appoint an acting Chief Justice from among the judges of the court to perform the duties of the Chief Justice, and obviously for this he has to consult with the जो आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उन्हीं में से एक को चीफ जस्टिस के रूप में, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The minimum number of Supreme Court judges who can hear a case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution is what? So what is the number of the Supreme Court judges? जो एक बेंच जो आपने सुना होगा, you heard about the bench कि इस बेंच ने ये जजमेंट दिया, तो उस बेंच में मिनिमम कितने मेंबर्स जो है आपका हो सकता है. So what is the correct option? तो ऑप्शंस 4 है, 5, 7, 11 एंड 13. सो हाउ मेनी जजेस, तो कितने जजेस जो है एक बेंच में होते हैं मिनिमम. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 5 जजेस. ओके, एक बेंच जो बनती है, जो जजमेंट देती है, उसमें जो है आपके 5 जजेस होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स रिलेटेड, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से मैटर्स रिलेटेड होते हैं तो 5 जजेस होते हैं मिनिमम. लेकिन ये जो जजेस की जो संख्या होती है 5 होती है, एंड इन स्पेशल केसेस जो है लार्जर बेंचेस भी बनते हैं. स्पेशल केसेस में लार्जर बेंचेस भी बनते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 5 जजेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड. यानी कि हम मिनिमम हमने देखा कि 5 जजेस तो होते ही हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त मैटर है कोर्ट के सामने जिस पर 5 जजेस से केवल काम नहीं चलेगा, तो वो जो है 5 से ज्यादा जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो द नंबर ऑफ द जजेस आर ऑलवेज इन ऑड नंबर्स, ठीक है, ये हमेशा ऑड नंबर्स होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई ऑड. अब क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों ऑड नंबर्स में, व्हाई? सो दिस इज डन टू अवॉइड क्लैश ऑफ वोट्स और व्यूज. तो क्लैश ऑफ वोट्स और व्यूज को जो है अवॉइड करने के लिए ऑड नंबर में जजेस के नंबर्स रखे जाते हैं. इट मे बी 5, इट मे बी 7 ऑल्सो. ओके, now the last question of today's video lecture, which one of the following cases propounded the concept of basic structure of the Indian Constitution? इनमें से कौन से केस ने ये बताया था about the basic structure of the Indian Constitution? तो ये सारे ही फेमस केसेस है, इंदिरा साहनी केस, शंकरी प्रसाद केस, रुडल शाह केस, and none of the above. So what is the correct answer? Friends and students, try to guess the answer yourself also. So this is also, there is a very famous case which is related with basic structure of the Indian Constitution. So try to give the answer yourself. What is the correct? So let's check. The correct answer is option D. That is none of the above. Obviously none of the above, because the correct answer is, it is the Keshwananda Bharti versus State of Kerala case 1973. Okay, in the famous case केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, जिसमें 13 बेंच, अभी मैंने आपसे इसलिए बोला था कि कितने जजेस जो होते हैं मिनिमम, तो इस केस में आप देखिए 13 जज बेंच वाज सेट अप बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द बिगेस्ट सो फार, अब तक का सबसे बड़ा जो है बेंच बनाया गया टू हियर द केस, एंड द लैंडमार्क जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 24 अप्रैल 1973 बाय अ थीन मेजोरिटी ऑफ दैट इज 7:6. ठीक है, एंड जिसमें मेजोरिटी जाता है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाती है, कि गवर्नमेंट जो है अगर आपकी बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट आता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में है क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट है, जिसके बिना डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है. ठीक है, तो यहां पर इस फेमस केस में बात आई है द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन के है उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकती है. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस विच इज रिलेटेड विद द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस. और ये ऐसा ही टाइम है जिस समय गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत सारे क्लैशेस भी नजर आए थे. तो आई होप स्टूडेंट कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड एट द लास्ट
Thanks for watching this video.